کو کوئی نہیں دبا سکتا. ہم جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے اپنی ان بچیوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی ان بہن بھائیوں کے لیے جو توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں, اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اپنے طور پر آپ کسی بھی تحریک میں کسی بھی جگہ پر جب اس طرح کے واقعات کے حوالے سے کوئی تحریک چلتی ہے تو مظاہرہ ہوتا ہے, وہاں پر آپ نے اپنا وقت نکالنا ہے, اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہیں اور آپ نے اپنا گاڑی کا پیٹرول جلا کر یہاں آنا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری آواز ضرور سنی جائے گی, آگے بھی سنی گئی ہے. جیسے کہ GSP پلس اسٹیٹس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ یورپین پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی, آگے بھی ہم اپنی بات کو ان کے سامنے رکھیں گے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. تھینک یو ورسن بھائی, بہت بہت شکریہ. ہم سب جانتے ہیں کہ ورسن بھائی اور گلباز بھائی کی ہمیشہ سے کتنی کوششیں ہیں, ایفرٹس ہیں کہ کسی طرح سے بھی اپنی آواز, اپنے بہن بھائیوں کی آواز ہم ہوانے بالا تک پہنچائیں. تو ایک دفعہ پھر کپتان صاحب آپ سے مخاطب ہوں. واٹسن بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں وہ اسکول میں وہ جو گندے پانی والا مسئلہ ہے, کپتان صاحب پلیز سن لیں, اس کو حل کریں. کپتان بنے, کپتان مہربانی کر کے انصاف دیں وہاں پر مسیحوں کو. کپتان صاحب مجھے پھر سے آپ کو یاد دلانا پڑے گا کہ آپ پوری ٹیم کے کپتان ہیں, صرف کچھ کھلاڑیوں کے کپتان نہیں. نان صاف بھی کرنا بند کریں اور یہ واٹسن بھائی نے جو ابھی بتایا نہیں وہ اسکول والا مسئلہ بھی حل کروائیں. بہت بہت شکریہ. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور میں درخواست کروں گا بھائی گلباز سے. میری طرف سے سب کو بہت سلام, میری طرف سے سب کو سلام. اور میں آپ سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جو یہاں اس ٹائم موجود ہیں. اور مجھے بہت دکھ, بہت افسوس ہے, آواز نہیں آ رہی, مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو کہ یورپ میں رہ کر بیلجیم میں, ہالینڈ میں وہ یہاں نہیں آئے. ان کے لیے افسوس در افسوس. ان کے اندر انسانیت بڑھ گئی ہے, وہ بھول گئے اپنے بہن بھائیوں کو, جو اپنی بچیوں کو. یہ سوچیں کہ اگر ان کی بچیاں وہاں آتی یا وہ پاکستان میں ہوتے ان کے ساتھ ایسا ہوتا کیا ہوتا. شرم, شیم قوم کے لیے بیٹے نہیں دے پائے. اور میں پاکستان حکومت کے خاص طور سے تھینک یو ماسٹر صاحب, گاڈ بلیس یو. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. بیلجیم میں آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے جذبے کے لیے, آپ کی محبت کے لیے جو آپ پاکستان کے انوسینٹ کرسچنس بہن بھائیوں کے لیے اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ سب کو برکت دے. اور میں ہالینڈ کی اس کاوش کو جنہوں نے اس کا آغاز کیا اور پھر ہالینڈ اور بیلجیم میں مل کر اس کا ارینج کیا, میں اس پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. اور بیلجیم میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ خوش رہے. بچنے والے تمام مریضوں کے حقوق جو ہے ان کو جاری کرے. اور یہ جو پاکستان میں خصوصی طور پر چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اس کے لیے ہم گزارش کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اسے ختم کیا جائے. اب ہم چاہتے ہیں کہ جیسا کی جائے تاکہ اقلیت جو ہے اس کو ہندو ہے, سکھ ہے, فارسی لوگ ہیں, اس کے علاوہ مسیحی بھی ایک بڑی تصویر رات میں ہے.
सबका भी यही मौसम है कि वो खबर पाकिस्तान के लिए तरक्की अता करे और Islamic organizations for kidnapping our daughters. We are here, we are crying here for our daughters. We need our daughters, we need safety for our daughters. आज हम यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने हैं तो हमें पाकिस्तान एम्बेसी की जरूरत नहीं। हमने बहुत रोया, हमने बहुत कहा कि इस मुल्ला इस्म को रोको, किसी जवान के बच्चे ने नहीं रोका। मदीने की रियासत बना दिया जिसमें करप्शन है, दूध खाने से नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, उसे मदीने की रियासत कहा जाता है। उसकी आड़ में चंद इंतहा पसंद मौलवी हमारी बच्चियों को किडनैप करते हैं। और खास करके मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ जो अम्बेसियों के कार्टून हैं कि अब तो कुछ नहीं हो रहा, आने वाले वक्त में ज्यादा होगा। तालिबान वहां से चल रहे हैं, वो पाकिस्तान को भी लेंगे और हमें हमारी दिए जा रहे हैं। ढूंढते हैं, जुल्म करते हैं। मैं उन इंतहा पसंदों को याद करवाना चाहता हूँ कि हम उनके हर मजहब की इज्जत करते हैं, हम मजहब इस्लाम की इज्जत करते हैं, हम उनके पैगंबर की इज्जत करते हैं और उन पे एक महला याद कराना चाहता हूँ। जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेंट कैथरीन में एक वादा किया था कि अक़लियतों को उनकी जान और माल की हिफाजत की जाए, उनकी आबादी ढूंढते हैं, जुल्म करते हैं। मैं उन इंतहा पसंदों को याद करवाना चाहता हूँ कि हम उनके हर मजहब की इज्जत करते हैं, हम मजहब इस्लाम की इज्जत करते हैं, हम उनके पैगंबर की इज्जत करते हैं और उन पे एक महला याद कराना चाहता हूँ। जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेंट कैथरीन में एक वादा किया था कि अक़लियतों को उनकी जान और माल की हिफाजत की जाए, उनकी ये मैं कह रहा था कि जो कुछ मैंने कहना है वो दोस्त कह चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल में है कि मैं भी उन सब का शुक्रिया अदा करूं जो हमारे दोस्त हॉलैंड से आए हैं, फ्रांस से आए हैं और बेल्जियम से भी आए हैं। तो इनका शुक्रिया और ऐसे अपने जज्बे को आप इसी तरह रखें ताकि जब नेक्स्ट हम कहीं भी यूरोपियन यूनियन में जाएं या अगर आप जेनेवा में जाएं तो इसी जज्बे से जाएं। तो मेरी तरफ से सबको बहुत सलाम और सलूट है। हम तब्दीली चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदावंद आसमानी बाप आपके हाथ को हम मुल्क पाकिस्तान पर देखें और खुदावंद जिंदगियां बदले वहाँ पर, खुदावंद ख्यालात और सोच बदले। हम जानते हैं कि आप समंदर को दो हिस्से कर देते हैं, हम जानते हैं कि आपके बेटे यीशु के वसीला से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद उस मुल्क के अंदर भी तब्दीली आएगी और मोहब्बत का झंडा वहाँ पर लहराएगा। और हम यकीन करते हैं आसमानी बाप आपका बेटा यीशु मोहब्बत है। यीशु जी आपका हाथ चाहते हैं, आपका हाथ बड़ा रहे जितने यहाँ पर मौजूद हैं और खुदावंद एक एक के लिए बरकत चाहते हैं। खास तौर पर खुदावंद जो सफर करके आए हैं, खुदावंद पूरे रास्ते में बड़ी मदद और हिफाजत करना, खुदावंद अपनी कौम को संभालना, यगानगत को मांग लेते हैं क्योंकि आसमानी बाप हम जानते हैं कि आपको यूनिटी पसंद है। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, रहम चाहते हैं खुदावंद आपके लोगों के लिए। खुदावंद आसमानी बाप ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बुजुर्ग नाम से, आमीन। खुदा
खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज ज़बान माफ कर। हमें आज आगे न पड़ने दे, बल्कि भाई अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत और शाकत हम सबों के साथ इसी तरह से होती रहे। आमीन। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। वाटसन गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में मसीहों के जो हालात हैं उन पर हमें सख्त तशवीश है। वैसे तो जितने भी पाकिस्तानी मसीही हैं दुनिया में वो सारे ही पाकिस्तानी मसीहों के हवाले से एक दर्द रखते हैं दिल में, एक फिक्र होती है हमें, क्योंकि हमारा मुल्क है पाकिस्तान और फिर हमारे लोग जो है वो हमारे अपनी फैमिलीज हैं वहाँ पर। लेकिन अफसोस की बात यह है, बल्कि शर्म की बात यह है कि पाकिस्तानी मसीहों के हवाले से बच्चियों, खास तौर पर जो पाकिस्तानी बच्चियां हैं उनके हवाले से 9 साल 10 साल 12 साल की अगवा, जबरी इस्लाम कबूल करवाना और उनका निकाह कर देना, इस तरह के शर्मनाक वाक़यात जो है वो इनमें इजाफा हो रहा है। मैं भी एक बाप हूँ और मैं समझता हूँ कि जो माँ बाप अपनी बच्ची को नाजुक तरीके से, इवन कोई कितना भी गरीब बाप होता है वो अपने बच्चों को कैसे पालता है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाएं और अगर वो बच्ची अगवा हो जाए और उसके बाद उस बच्ची को उसके सामने से पुलिस ये कहकर के जनाब अब ये मुसलमान हो चुकी है और कोर्ट में जज साहब ये कह दें कि जनाब अब इसने निकाह कर लिया है, वो माँ बाप कुछ ना कर सकें, इससे बड़ी शर्मनाक बात जो है वो किसी भी आज़ाद मुल्क के लिए कोई और नहीं हो सकती। और मैं आपको ये बात बता दूं कि दुनिया में शायद पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसमें इस तरह के वाक़यात जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा है। तौहीन रसालत का जो कवानीन है उनमें भी इजाफा हो रहा है और एक टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पाकिस्तानी मसीह किसी पाकिस्तानी मुसलमान के साथ काम करता है, ज़रा सा अगर दो बंदे अगर काम कर रहे हो तो आपस में चिक चिक हो जाती, लेकिन यहाँ वो भी, उसका भी कोई चांस नहीं, क्योंकि ज़रा सा किसी ने चिक चिक की और वो बंदा जो उसको कहता है ना कि भाई तेरे ऊपर मैं तौहीन रसालत का मुकदमा बनवा दूंगा, तो वो डर जाते हैं। ये खौफ जो है वो आपको पाकिस्तान में मसीह होने के नाते इस खौफ में अपनी जीने का जो है आपको जीना पड़ता है, अपनी जिंदगी वहां गुजारनी पड़ती है। अफसोस की बात है ये। उसके बाद फिर हमारी इमलाक, जैसे एडवर्ड कॉलेज है और बहुत सारी हमारी इमलाक जो हैं उन पर कब्जे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एडवर्ड कॉलेज पे हम कब्जा तो कर लिया है हुकूमत ने और कोर्ट के ऑर्डर